Hi friends, I hope you guys had a good weekend. I hope आप सब ठीक हैं and आज से हम अपने क्लासेस शुरू कर देंगे. पर उससे पहले हम आज एक और गेस्ट से मिलेंगे. आज हम मिलने वाले हैं जयराज से. जयराज भट्टाचार्य, जैसे मैंने आप लोग को पहले भेजा एक वॉइस रिकॉर्डिंग. उन्होंने कॉन्वेजीनियस नाम की जो कंपनी है उसको फाउंड किया है. कंपनी अराउंड 9 years से है हम उनकी अभी. एंड द मेन एम ऑफ द कंपनी इज टू फोकस ऑन एड टेक. वो एजुकेशन को बहुत फन और एक्सेसिबल बनाते हैं. जैसे हम चाहते हैं कि एजुकेशन काफी, जैसे हम अपने प्रोग्राम के साथ ट्राई कर रहे हैं आपको काफी डिफरेंट वे में पढ़ाने की, वो भी एक्चुअली वैसे ही करते हैं. अब हम एक बार उनसे बात करते हैं, उनसे मिल लेते हैं. हाय जयराज. Hi, how are you? I'm good. How are you? Very good, very good. So all our learners are always so excited to meet new people, and I'm sure they are as excited to meet you. Let's start with the talk. क्या आप हमें बताइएगा कि आपने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी एंड कॉन्वर्जीनियस का आइडिया कैसे आया और आपने उसको कैसे आगे बढ़ाया? Sure. मेरा जो entrepreneurship journey है वो actually college से शुरू हुआ था. When I was in my engineering college, I was pursuing computer science and electronics in IIIT Hyderabad. Always excited to meet new people. Yeah. Yeah, sorry. Yeah. Yeah. So in college, it started out with the whole idea of doing something which was novel and unique and impressing people. So what I started my entrepreneurship journey was with a simple application on Nokia Symbian phones. It was 2009. We didn't have smartphones. तभी smartphone था नहीं. तो हमारा Nokia phone में simple applications आता था Symbian OS पे. तो हमने एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया था जिससे घर के लाइट्स, फैंस और लैपटॉप का कैमरा ऑन ऑफ कर सकते थे फोन से. इट वाज अ कूल ऐप. तो वी शोड दैट टू अ बिजनेस प्लान कंपटीशन इन आईएसबी. वहां से इन्वेस्टर्स काइंड ऑफ सेलेक्टेड अस एंड दे गेव अस द फर्स्ट प्राइज एंड देन दे कॉल्ड अस एंड दो ऑप्शन प्रेजेंट किए थे हमारे सामने. एक तो यू कैन जस्ट गिव अस द कोड, name the price, whatever you want, give us the price you would like to buy the code out, or we would invest $1 million, 6-7 crore rupees will invest, and you drop out of college and start this as a company. So that was the first stint of entrepreneurship where we felt that okay, this is something we didn't expect to happen, and we were looking at each other and wondering what price should we ask for, and we just said 10 lakh rupees, and he just wrote a check of 10 lakh rupees and gave it to us. That is because we didn't want to drop out of college in second year. So that was the first entrepreneurship stint that we faced, and we faced blood. I mean, that is when you feel that you can do everything, right? The world, the upside is open for you. You can achieve anything in the world. कुछ भी हो सकता है. That is that experience you feel when you see a small code that you have written being valued so much. So entrepreneurship for me started that way. And once that happened, there were multiple ideas I worked on in college. Then I was in Singapore working on a research stint for a while. Then I joined the Young India Fellowship Program. Wahan pe I was working on something where I could marry my ability with technology and liberal arts. I wanted to do something in the social space. So a problem that I could work on, and I could work on for a long amount of time. I remember Sanjeev Bikhchandani. Sanjeev is founder of Naukri.com. So Sanjeev ji ne ek cheez bola tha to all of us, the founding batch. He said that work on something that you can build for a lifetime. You can solve for a lifetime. So what is it that you can build for a lifetime? If you can work on that then you're changing the world. You will of course make money in multiple ways, right? But you can only make money and change the world when you work on something that you can build for a lifetime. So that is called the institution building concept, right? Are you building an institution, or are you actually just building a company? So that's where social entrepreneurship kind of clicked, and it was like, let's do something where you'll also feel good about it when you wake up in the morning, and you're also making money, and you're also thinking ki I'm changing lives. So that's how Convegenius happened. Convegenius was about bridging the educational gap for the poorest of the poor. So we wanted to reach out to those children who do not have quality education, who do not have good teachers, government school students, and give them the opportunities that we get in good schools.
So how do we do that? Every household today has a smartphone. So if you could bring quality content and quality learning to that smartphone and give them the same experience, that was like bringing the power to teach and learn on the mobile device. So I wanted to kind of work on that. How do you get the power to teach and learn on a mobile device and get that similar quality learning to that child who doesn't have access to good content and good teachers. So that's how Convigenius started, and now we are अब हम लोग 16 states में हैं across the country. 500,000 children are learning through our solution. We work primarily with government schools and affordable private schools. So we are focused on the bottom and the lower end of the pyramid. So it's been 6 years now, and we have about 120 people across the country, and it's been a good journey. And most importantly, it's a fulfilling journey because we are happy that we are doing this every day. Yeah. आपकी कंपनी का नाम Convigenius is very interesting. Yeah. इसके पीछे का क्या स्टोरी है, अगर कुछ हो तो बताइए प्लीज. So we wanted to build an education technology company. So it had to kind of have a significant link to what we wanted to do. So Convigenius was a company that the name clicked because it was already an existing company. There was a company called Convigenius Intelligence Services of one of my batchmates of the Young India Fellowship program. So her friend had this company, Convigenius Intelligence Services. Convigenius clicked because it's a mix. It's convergence of genius. So I could kind of relate to that. So I convinced my friend to kind of buy that domain out and take that name because it was perfect for the company I wanted to build. So it's essentially meaning that convergence in genius. So we want to kind of bridge the gap and try to make every child limiting towards the geniusness in them. Yeah. दोस्तों मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ, श्योर. या सो थैंक यू सो मच जयराज. बहुत अच्छा लगा आप अभी तक जो बता रहे हैं कि आपने कॉलेज टाइम पे ही इतना अच्छा फंड उठा लिया था. मतलब मोस्टली लोग तो इसके सपने देखते हैं, तो आपसे सीखने में काफी मजा आएगा आज. जो भी देख रहे हैं दोस्तों, सवाल पूछो, बहुत सारे सवाल पूछो. ये मौका रोज रोज नहीं आएगा जयराज जी से बात करने का. तो जयराज जी, एक सवाल है हमारे पास, और कई सारे स्टूडेंट्स इस बात में इंटरेस्टेड है कि आपके पास जो ऐप है वो ये कैसे यूज कर सकते हैं. तो क्या हमारे स्टूडेंट्स भी आपका ऐप यूज कर सकते हैं? कोई फ्री वर्जन है इसका? हाँ, फ्री वर्जन है, बट हमारा जो सोल्यूशन है हम बच्चों पे फोकस करते हैं. हम किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 10 के बच्चों का पर फोकस करते हैं. So our app is available for free. One version of it is available for free. If any children are in between kindergarten to grade 10, they could avail our services for free as well. We could potentially send that link out. तो दोस्तों, अगर आपके कोई छोटे भाई या बहन क्लास 10वीं या क्लास 10वीं से नीचे के क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे, आप भी यूज करिए. जयराज, ऑल्सो आपसे एक सवाल पूछना था कि जब आपको एक कॉलेज में ऑफर आया और जब आप कॉलेज में ये सब कर रहे थे तो ड्राइव क्या थी? क्योंकि आपकी पढ़ाई में तो ये सब करने को ऑब्वियसली नहीं बोला गया होगा फॉर्मल एजुकेशन में कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए. तो ये क्या ड्राइव रही होगी कि आपको लगा कि यार मैं कॉलेज में ही कुछ ना कुछ करता हूँ? यार ऐसा था ना कि कक्षा 1 से लेके कक्षा 10, ग्रेड 1 टू ग्रेड 10 हमेशा मैं फर्स्ट आता था क्लास में. ठीक है, फर्स्ट आने के बाद भी कुछ उखाड़ नहीं पाया जिंदगी में. इट्स जस्ट दैट इफ यू आर फर्स्ट इन क्लास और सेकंड इन क्लास और फिफ्थ इन क्लास, it really doesn't matter. So when I actually got into got through an IIT, Triple IT, and all of these places, then went through the engineering circle, and then when I came to my second year, I realized that the people who are good in the extracurricular activities are the ones who actually end up becoming great leaders because they know how to speak and articulate. And that's when I realized that being a good leader is not just about academics and analytics, right? It is actually about articulating your vision in the right way and convincing other people to do the things that you want them to do. So that's where leadership was not just about good academics. I realized that in college, and then academics was important, but it was not the most important thing. So then I started experimenting with other stuff, something that is that you are passionate about, that bothers you. कुछ तो अंदर से होता है ना कि this is something I want to solve.
And if you have that internal spark, you want to do it, and you get obsessed about it. So I had the resources in college to kind of use my robotics and computer science labs and tinker around and keep working on something I'm really passionate about. I was passionate about microcontrollers and robotics at that point of time. Then through robotics, these ideas came out that you could potentially use automation, and you link your mobile device with your fan and electric plug and everything, right? You start getting ideas, and then you solve a problem, and that problem, one thing leads to other. So I think you should follow your passion, and once you start following your passion, magic happens. दोस्तों ये ध्यान से सुनना, once you follow your passion, magic happens. ये सब लोगों ने बोला, अब तक जितने लोग पॉडकास्ट में रहे हैं, and you have heard it, आपने एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से सुना है, तो आप लोग भी अपने पैशन को फॉलो कीजिए. जयराज, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आ रही थी हमारे ऑडियंस से. आप हिंदी के साथ कंफर्टेबल हो? हाँ, तो कोशिश करेंगे अगली कन्वर्सेशन हिंदी में करें. ऑडियंस को बहुत मजा आ रहा है और वो चाहते हैं कि आपसे और चीजें समझ पाए. तो एक सवाल, अच्छा ये सवाल तो ऑलरेडी आई थिंक आंसर हो चुका है कि इन्होंने पूछा है, सृष्टि ने, सर आपको अपने कंपनी के नाम का आइडिया कहाँ से आया, कॉन्वेजीनियस की बेटर है? तो आई थिंक वो ऑलरेडी बता चुके हैं, कन्वर्जेंस ऑफ जीनियस, यानी कि सब जीनियस एक साथ आकर मिले, या फिर सारा जीनियस एक साथ आकर मिले. जरा ऑल्सो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? ये बहुत हॉट सवाल रहा है अब तक सारे डिस्कशन में, कि जब भी कोई एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करता है, हमारे दोस्तों ने भी जो ऑडियंस में देख रहे हैं वो हमेशा सोचते हैं कि पेरेंट्स क्या कहेंगे. तो आपका इस पे क्या टेक है? पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स ने क्या कहा, और आप क्या बोलोगे कि हमारे दोस्त लोग जो देख रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें? हाँ, तो मेरे मम्मी पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं. मम्मी वाज अ टीचर, हिंदी टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, केंद्रीय विद्यालय में हिंदी पढ़ाते थे. पापा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे. तो दूर दूर तक एंटरप्रेन्योरशिप का नाम और कभी सुना ही नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में किसी को, अपने इकोसिस्टम में, अपने सराउंडिंग में. तो जब मैंने पेरेंट्स को बोला कि मैं सिंगापुर में अपना, तो मैं आई वाज वर्किंग इन सिंगापुर, 1.5-2 साल सिंगापुर में नौकरी कर रहा था. आई वाज डूइंग रिसर्च, वहाँ पे रिसर्च कर रहा था. तो मैंने पापा को एक दिन फोन करके बोला कि यार मजा नहीं आ रहा है, मतलब आई एम कमिंग बैक, मैं वापस आ रहा हूँ और अपना कंपनी शुरू कर रहा हूँ, और जो भी पैसे वैसे बचाया है सब कंपनी में ही लगा रहा हूँ. तो पहला रिएक्शन तो ये था कि पागल हो गया है बच्चा, मतलब कुछ ही बोल रहा है, मतलब अच्छा खासा नौकरी छोड़ के आ रहा है. बट व्हेन आई बुक माय टिकट एंड मैं वापस जब आ गया और कंपनी शुरू हो गया, 2-3 महीना तो सदमा होता है कि क्या हो रहा है, मतलब इज इट फॉर रियल. बट जब चीजें मूव होने लगते हैं, पेपर में नाम आता है, आप फंडिंग उठाते हो, एम्प्लॉयज दिखता है. पापा, द फर्स्ट रिएक्शन आई रिमेम्बर, जब मम्मी पापा सीरियसली लेने लगे मेरे को, जब एक्चुअली ऑफिस विजिट किए थे हमारा नोएडा में. तो व्हेन दे सॉ दैट देयर इज एन ऑफिस, देयर इज अ केबिन, देयर आर एम्प्लॉयज वर्किंग, देन दे स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली, बिकॉज़ अदरवाइज दे लाइक तुम्हारा बच्चा है, पता नहीं क्या कर रहा है, मतलब. तो आपका ये ऑफिस तक का सफर, कि आपका नोएडा में अपना ऑफिस हो, अभी आप कहते हैं कि आपके 120 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया फीट है, क्योंकि मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूं, हम अभी धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं. तो आई थिंक ये फीट कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है. तो ये जो सफर था आपके अपने ऑफिस तक का, इसमें आपके पेरेंट्स, इसके बीच में उनका क्या रिएक्शन था, और मतलब उस टाइम पे मतलब क्या स्ट्रगल रहा आपका, क्योंकि पैसे की कमी देखी आपने मतलब उस टाइम पे, या कभी ऐसा देखा हो कि यार बहुत पैसे चले गए, बहुत दिक्कत आ रही है? एक तो ऐसा है ना कि सेकेंड ईयर में हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा एंटरप्रेन्योरशिप का, सेकेंड ईयर से घर से पैसा लेना तो कम्प्लीटली बंद कर दिया था. बिकॉज इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट यू हैव टू बी एबल टू सस्टेन योरसेल्फ. खुद का पहले यू हैव टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. Only then you will be able to create jobs for thousands of people, right? Suppose you have say 100 employees. आपके पास अगर 100 employee हैं, you must be on an average taking care of 150 to 200 people. Household, family होता है, family income होता है, कुछ लोग के बच्चे होते हैं. तो fundamental principle आपको अगर you should be able to see that कि आप अपना ख्याल रख पा रहे हो क्या. सबसे पहले तो अपना ख्याल रख पा रहे हो क्या, अपना ट्यूशन पे कर पा रहे हो, अपना basic necessities, and never worry about yourself. If you are in that situation, then you can create value. तब create होता है कि तुम्हारे पास इतना है, तुमको इतना चाहिए,
बाकी इतना you can kind of give it out. You can create value out of it. तो day one से हमने जब शुरू किया था, it was never that the situation was कि we would not be able to do it. हमको हमेशा लगता था कि हो जाएगा, मतलब and touchwood कि अभी तक कभी ऐसा भी situation नहीं आया है कि we have kind of not fulfilled our commitments. We have always been able to do it. So entrepreneurship is also about thinking ahead. 6-7 महीने आगे का सोचने का capability रखना चाहिए कि what is the possibility. So if you play chess, right, you know what are the different possible outcomes that can come out for different possible situations, right? Today what we are facing, कोरोना वाला सिचुएशन, दिस इज अ क्लासिक वूका मूवमेंट. एमबीए में वूका बोल के एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? VUCA, वूका, volatile, chaotic, and the world can go through a VUCA moment basically. When World War II happened, it was a VUCA moment. So how you react in a VUCA moment can change lives and change companies. In a crisis, in adversity, there is opportunity. So how everyone react, कौन कैसे react करता है ऐसे situation में, determines how you become in the future, right? There are huge companies that have been created in crisis, and huge companies which have fallen apart as well. So it's always about how do you think through over the various possible scenarios and situations that are incumbent सामने जो आ रहा है तुम्हारा. So, दोस्तों मैंने वूका जो जयराज जी ने मेंशन किया वो मैंने कमेंट्स पे लिख दिया है. वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी. देखना जरूर और इसके बारे में पढ़ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये. तो जयराज जी, एक प्रियंका का सवाल है, सर आपको किसने सपोर्ट किया सबसे ज्यादा और क्या क्या प्रॉब्लम आई? तो आई थिंक प्रॉब्लम्स की तो थोड़ी बहुत बात कर ही चुके हैं कि पेरेंट्स को इनिशियली समझ में नहीं आया कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, फिर धीरे धीरे जब उन्होंने ऑफिस देखा तो उन्हें काफी अच्छा लगा. तो ये प्रूव करने वाली बात होती है. तो उस वक्त आपको, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू कर रहे थे, सबसे ज्यादा सपोर्ट कहाँ से मिला आपको? सपोर्ट तो बहुत सारे जगहों से मिला था एक्चुअली. सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है. सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरा को-फाउंडर है. Me and my co-founder have started the company. My co-founder is my junior from college. So we started out college से, we started out together. robotics club शुरू किए थे और फिर वहां से हम लोग नासा गए थे. तो मेरे को लगता है एक स्ट्रॉन्ग को-फाउंडर होना और स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स होना बहुत जरूरी है. So after my co-founder, we got three more co-founders who were my batchmates and friends. So we were 5 co-founders. ठीक है, तो 5 लोग जब मिल जाते हो और साथ में पूरा दिन रात काम करते हो, तो you create a small ecosystem around yourself. एक दिन you are down, then they pull you up, right? So creating a very strong support system of very trusted co-founders is very important. Along with that, if you have good friends who support you personally, mentally, that also helps out. And family, of course, will support you. Initially, they are scared, but after that, they start supporting you. Yeah. तो जयराज, आप जब 18... अक्षय, we lost you. आप सुन पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं कह रहा हूँ जब आप 19-20 साल के थे, जो कि आज हमारे ITI के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी एज ग्रुप के हैं, आप तब क्या कर रहे थे? तब मैं सेकेंड ईयर में था, इसलिए वो सेकेंड ईयर वाला कहानी मैंने सुनाया था. आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहे थे, आपको मालूम था क्या होता है क्या नहीं होता? हाँ, तो मालूम तो नहीं था, बट एंटरप्रेन्योरशिप में कूद गया मैं, क्योंकि कुछ बनाए थे हमने और फिर बिजनेस प्लान कंपटीशन में चले गए दिखाने के लिए. बिजनेस प्लान कंपटीशन गए तो इन्वेस्टर्स जज थे, उन लोगों ने देखा, उनको पसंद आया कि हमने जो बनाया है उनको चाहिए अपने लिए, उसको आगे बेचने के लिए. तो उन लोगों ने बुलाया हमको, बोला कि हम लोग तुम्हारे में 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टार्ट अ कंपनी, और जस्ट सेल इट टू अस. मैंने ये कहानी सुनाया था. तो आई वाज एग्जैक्टली दिस वाज व्हेन आई वाज 19. तो मुझे पता नहीं था ये एंटरप्रेन्योरशिप है. उस टाइम पे मेरे को लगा यार कंपटीशन है, बिजनेस प्लान कंपटीशन है, जीतेंगे तो अच्छा है, थोड़ा बहुत प्राइज मनी मिल जाएगा. बट दैट लेड टू दिस होल आइडिया कि कंपनी शुरू करोगे तो हम इन्वेस्ट करेंगे तुम्हारे में. तो दैट पॉसिबिलिटी, एंड देन you understand that there is a possibility कि आप खुद कंपनी चला सकते हो, and you can become what
उस टाइम पे मार्क जकरबर्ग वाज अ क्लासिक एग्जांपल. फेसबुक तभी बड़ा हो रहा था उस टाइम पे. व्हेन आई वाज 19 इट वाज फेसबुक हैड जस्ट कम टू इंडिया. Orkut और हाई-फाई ये सब ये इट वाज जस्ट ब्लैंकिंग आउट एंड फेसबुक वाज जस्ट एंटरिंग. इट वाज जस्ट कमिंग इन. तो मार्क वाज 16 एट दैट. आई थिंक 19 or 20, सेम एज, हमारे एज का ही था वो. तो he was a classic example. So we always used to get inspired by him. So yeah, we all started googling and we saw the possibility. हमको लगा कि हो सकता है, कुछ बना सकते हो. तो प्रोडक्ट मार्केट फिट समझ में आया था 20 साल में. प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है? एक मार्केट होना चाहिए और उस मार्केट के लिए तुम्हारा प्रोडक्ट बेस्ट फिट होना चाहिए, तब थिंग्स वर्क. तो आपके शुरुआत से जब आप अभी तक, खैर अब तो आपको आई थिंक 9 साल हो गए जैसे कांक्षा ने बताया आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या कुछ ऐसी चीजें आपको बोली गई थी जिनको आप कहते हैं कि मिथ्स हैं वो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? मतलब होता है ना, बहुत लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट होता है, राइट? उस टाइम पे आई थिंक और भी नया कॉन्सेप्ट था. अब तो जैसे काफी लोगों को पता है इन कंपैरिजन कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है. तो उस टाइम पे ऐसी क्या चीजें थी जो आपको रोकने के लिए बोली गई थी, या आपको लगता था कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भाई ये तो होना चाहिए? तो मिथ्स क्या थी आपके हिसाब से, या अभी भी जो है, जो आप अपने को बताओगे, जो आपका मतलब अपने आप को बताओगे, या हमारे दोस्तों को बताओगे जो 19, 20, 21 साल के जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं? एक तो मिथ ये है कि फैमिली स्टेबल होना चाहिए, फैमिली के पास पैसा होना चाहिए, एक प्लान भी होना चाहिए. ये सबसे बड़ा मिथ है. मेरे को तो उल्टा लगता है. जिसके अंदर आग है ना, दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू बी एन एंटरप्रेन्योर. यू शुड बी एबल टू just jump off the cliff and invent parachutes in the air. सबसे बड़ा myth है कि you should have a stable family to become an entrepreneur. I don't think that that is required. All you need is great perseverance and resilience. You need to have grit. The most important thing is grit. Search करना grit. Grit मतलब कि it's grit मतलब वो जज्बा, एक अलग तरीके का जज्बा कि you will not accept failure easily. आप फेल नहीं करोगे, आप लगे रहोगे उस चीज पे. उसको ग्रेट बोलते हैं. तो इफ यू हैव ग्रेट यू विल बी अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर. और क्या मिथ्स हैं जो आपने ये बताया, उसके अलावा और क्या चीजें जो आप भी आजकल देखते हो? मतलब इंडिया में आप इस तरह भी सोच सकते हो कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड भी अभी फैशनेबल होना शुरू हुआ है, राइट? उससे पहले गवर्नमेंट जॉब, उससे पहले मतलब प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब, ये सब एकदम इसकी मतलब वेव रहती थी कि सभी को ये करना है. तो ऐसा क्यों है? मतलब इस पूरे हफ्ते का हमारा जो थीम है हमारे दोस्तों के साथ जिसपे हम पढ़ेंगे उनके साथ, वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप के आसपास मिथ्स क्या है, लोग क्यों नहीं बनना चाहते एंटरप्रेन्योर्स. तो जो आपने पहली चीज बताई वो काफी बढ़िया है. और कुछ है आपके दिमाग में ऐसा? तो दूसरा ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप के साथ स्ट्रगल एसोसिएटेड होता है काफी बड़ा. और वो होता है स्ट्रगल, ऐसा नहीं है नहीं होता है. तो पहले 2-3 साल होता ही है स्ट्रगल. मेरे को तो याद है 2014 से लेके 2017 किया ही नहीं था, कुछ भी नहीं लिया पैसा, मतलब जीरो. कंपनी बना रहा था. बट वो डिफिकल्टी एक्चुअली यू सेल थ्रू दैट. वो उतना मुश्किल लगता नहीं है क्योंकि तुम्हारे सामने कुछ चीज बन रहा है. मतलब यार इट्स लाइक अ बेबी, राइट? इट्स मोस्ट डिफिकल्ट इन द अर्ली ईयर्स बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट a lot. बट ये गलत है कि पूरा लाइफ ही स्ट्रगल रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है. पहले 3-4 साल में पता चल जाता है कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो या नहीं बन सकते हो. 3-4 साल अगर इफ यू आर एबल टू सेल थ्रू, यू कैन गो थ्रू द पीरियड. तो स्ट्रगल की वजह से लोग नहीं जंप करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, क्योंकि मंथली सैलरी जो होता है ना, वो सबसे बड़ा एडिक्शन होता है. एक मंथली सैलरी आना बंद हो जाए, फिर पता नहीं कहाँ से पैसा आएगा. वो जो डर है, दैट इज योर बिगेस्ट, इट्स योर बिगेस्ट बॉटलनेक that will prevent you from being an entrepreneur. If you always think about where the money is going to come every month, सैलरी बंद हो गया. तो ये वाला जो है myth कि स्ट्रगल बहुत होगा, इस वजह से लोग एंटरप्रेन्योर बनते नहीं है. तो वो लीप ऑफ फेथ लेना बहुत जरूरी है. और अभी अगर देखोगे 10 साल के पीरियड में, जब आप ट्रैक करोगे कि जिन लोग एंटरप्रेन्योर बने हैं और जिन लोग जॉब में काम किए हैं,
और उनको अगर ट्रैक करोगे इन टर्म्स ऑफ नेटवर्थ या यू नो व्हाट दे आर डूइंग इन लाइफ, द पीपल हु हैव डन एंटरप्रेन्योरशिप, दे उन लोग स्ट्रगल तो किए थे 3-4 साल, पर जब निकले थे स्ट्रगल से बाहर तो उनको 10x 15x ग्रोथ मिला उनके दोस्तों से जिन लोग जॉब कर रहे थे। वो बहुत बड़ा जंप मिला। वो जंप कभी जॉब में नहीं मिल पाएगा। आप अगर 10 से 15% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ करते हो, अगर सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हर साल आता है, तो 10% करके अगर आप 10 साल इंक्रीमेंट लोगे, है ना, तो तभी भी जाके आपका ग्रोथ कितना हुआ, आपका ग्रोथ 2.5 टाइम्स हुआ सैलरी का 10 साल के अंदर, जो आप शुरू कर रहे थे। Whereas जो एंटरप्रेन्योर बना था वो भले 5 साल सैलरी नहीं लिया, बट 5 साल बाद जब निकलता है उसका ग्रोथ 100 टाइम्स होता है और 1000 टाइम्स होता है जो उसके दोस्त लोग कर रहे होते हैं। वो पॉसिबल नहीं है सैलरीड इनकम वाले स्ट्रक्चर में। तो वो स्ट्रगल पीरियड तो है, बट वो स्ट्रगल पीरियड के आगे देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। बट इट्स अबाउट दैट परसिवरेंस, इट्स अबाउट कि whether you are able to go through that struggle, that tunnel. If you have that in you, then you should go for it. I think आपने काफी बात की ग्रिट एंड परसिवरेंस की भी। आप अपने लाइफ से कुछ एक दो इंस्टेंसेस बता सकते हैं जब आपको समझ आया कि आप में ग्रिट और परसिवरेंस है? मतलब ग्रिट और परसिवरेंस काफी फैंसी शब्द है अगर मैं इसको सटली ना बोलूं, राइट? लेकिन एक्शन में वो कैसे दिखते हैं? आप अपना कोई पर्सनल इंसिडेंट बताइए। एक्शन में यार ऐसा है कि 2017 में बहुत बार हुआ है। मतलब कंपनी हमेशा doesn't go through a good phase, always it goes through a good phase and a bad phase. तो 2017 में ऐसा हुआ था कि हम लोग हमारे लास्ट 20-25 लाख रुपए कैश रिजर्व्स पे थे, जो कि 1 महीना 2 महीना का सैलरी का कॉस्ट था। उसके बाद मतलब हम लोग को सैलरी देने का पैसा था नहीं। तो डिसीजन लेना था 2017 में नवंबर के आसपास भी क्या कर पाएंगे। मतलब कंपनी शट डाउन करना है तो बताना पड़ेगा और मतलब कंपनी शट डाउन करना पड़ेगा। तो वहाँ पे बोर्ड मीटिंग याद है मुझे कि इन्वेस्टर्स के साथ बात हो रही थी। इन्वेस्टर्स वर लाइक कि इट्स अ रिस्की सिचुएशन, इट्स अ बैड सिचुएशन यू आर इन, इन्वेस्टमेंट आया नहीं है तो मे बी वी शुड जस्ट पुल द प्लग। तो आई रिमेम्बर दोज डेज, वो याद है मेरे को कि उस टाइम पे मतलब you start questioning yourself, you start questioning your value system, you start questioning ki all this for nothing, matlab all this, you have gone through all this struggle and this will just end like this and you'll be called a fool, right? Is this what the end was supposed to be? And it's a very difficult phase, right, you go through, and that's where grit and perseverance comes in कि एक और ट्राई मारा जाए क्या, एक और बार मार्केट में जा रहा जाए क्या। आई रिमेम्बर कि देन आई वोक अप, आई स्टिल वेंट अगेन टू इन्वेस्टर्स, फिर से गया, फिर से कॉल घुमाया, फिर से पिच किया, 400-500 कॉल्स, राइट। दो हफ्ते से कर रहा था लगातार, और 5 दिन पहले आई सिक्योर्ड अ फंडिंग ऑफ 4.5 करोड़ 2017। 4 days before the company was supposed to shut down, I got the money, and it just happened. It happens if you don't give up, and that turned it around automatically. So internally in your gut, you should believe that you can achieve it, and you should not give up. Then the world makes it happen. Very inspiring, Jairaj. Very inspiring. मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना था। आपने मेंशन किया था पहले कि जब आप सेकेंड ईयर में थे आपको बोला था इन्वेस्टर्स ने कि आप अगर ड्रॉप आउट कर जाओ तो 1 मिलियन आपके कंपनी में वो लोग इन्वेस्ट करेंगे एंड देन यू कैन बिल्ड दैट अप फ्रॉम स्क्रैच। बट आपने बस 10 लाख रुपीस लिए उनसे और फिर आपने आई थिंक अपनी डिग्री कंप्लीट करी। उस समय 19 साल के बच्चे को अगर कोई बोले 1 मिलियन रुपए आपको देंगे, इतना कुछ कर सकते हैं, द वर्ल्ड इज एट योर फीट, व्हाट वाज, मतलब आपने क्या सोचा और आपने अपने आप को ऐसे कैसे, मतलब अगर कोई मुझे आज बोलेगा ऐसे तो मैं कूद जाऊंगी, बट एज अ 19-year-old हाउ डिड यू कन्विंस योरसेल्फ और हाउ डिड यू रैशनलाइज, एंड आपने कैसे अंत में ये डिसाइड किया कि नहीं आप उन्हें मना करेंगे एंड आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करेंगे? उस समय क्या दिमाग में चला, प्लीज हमें बताइए। यार एक तो है ना वो
पहला तो $1 million हमको नहीं मिलने वाला था, वो इन्वेस्ट करते हैं अपने एज अ फंड, है ना, तो अपने कंपनी में। तो लगने को मतलब दोस्तों के सामने लगता है कि यार हमने फंडिंग उठाया है, बड़ा काम किया है, बट वो पैसा हमारे पास नहीं होता है। वो इट्स अ कंपनीज माइंड। तो कॉन्सेप्ट की क्या तुम्हारा पैसा है और क्या कंपनी का पैसा है, वो बहुत क्लियरली समझना चाहिए। वो सेम नहीं होता कभी भी। तो इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्टर का होता है, ठीक है। दूसरा है कि सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट करना, I don't think is the right decision. Agar if you have to become an entrepreneur, you'll become an entrepreneur in the longer run after you complete your degree. तो उस टाइम पे हाँ हमने सोचा था, जरूर सोचा था कि lot of people have dropped out and become millionaires, right? अच्छा स्टोरी बनेगा। Especially आपने because ये भी बोला था कि Mark Zuckerberg was a big thing then, and हम सुनते आए हैं। We had thought about not just Mark Zuckerberg, Bill Gates, all the big guys are dropouts, right? So dropout could be a fashion, but again that particular thing that we had built, we were not very serious about it. हमको लगा था ये ऐसे ही मतलब कॉलेज का we were trying to just, it was a gimmicky thing. We were trying to show off to the college that we know stuff and we can automate our home and we can kind of switch on the camera of my laptop from my phone. So this was like a gimmicky thing. We knew that this is not serious internally. So that's the reason we could make that decision कि नहीं यार हम कॉलेज वॉलेज कंप्लीट करेंगे, जो हाथ में आ रहा है वो ले लेते हैं। उस टाइम पे वो भी कम नहीं था वैसे, it was a lot of pocket money for us at that time. And that was ours. It was not the company's. Yeah. जयराज, वैभव ने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। वो पूछ रहे हैं कि सर बिजनेस पार्टनरशिप्स में ठीक रहता है या अकेले? कई बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में किसी एक पार्टनर ने फ्रॉड किया तो सारा बिजनेस डूब जाता है। फॉर एग्जांपल लिलिपुट गारमेंट्स वाली कंपनी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यार वो तो देखो, कॉन्सेप्ट इज फ्रॉड करना होता है तो फ्रॉड तो तुम खुद भी कर सकते हो। यू आर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स ऑन योर एथिक्स। तो आई थिंक जैसे मैंने ग्रिड की बात की और परसिवरेंस की बात की, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, वो है एथिक्स, योर मॉरल एथिक्स। कि आपके कंपनी में बहुत पैसा बहुत सारे इन्वेस्टर्स लगाएंगे और वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो तुम पे ट्रस्ट करते हैं और तुम्हारा क्रेडिबिलिटी को ट्रस्ट करते हैं। एक बार तुम्हारा क्रेडिबिलिटी गया तो you will never be an entrepreneur. No one will ever trust you, right? So it is not about partnership. These are two different questions. The first question is about ethics. कि when people trust you with their money, are you आपके पास आपका बड़ा responsibility है। आपको जब पैसा मिल रहा है, it's not just money being given to you, आपका responsibility है कि उस पैसे से आपको investors को returns देना बाद में। तो it's a big job. It's not easy. पार्टनरशिप अच्छा इसलिए है क्योंकि आप हमेशा आपके बेस्ट पे नहीं होते हो। आप सब लोग ह्यूमन बीइंग्स हो, ह्यूमन बीइंग्स मेक मिस्टेक्स, ह्यूमन बीइंग्स हैव देयर इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। तो यू नीड गुड पार्टनर्स हु यू कैन ट्रस्ट, हु आर गुड सपोर्ट सिस्टम्स, बिकॉज व्हेन यू आर डाउन दे आर अप एंड दे कैन स्टिल कीप योर कंपनी अलाइव। तो आई थिंक पार्टनरशिप हैज ऑलवेज बीन अ गुड थिंग and I encourage having good partners. Because if you want to build a company, if you want to win battles, you can't fight battles alone. You need an army. So your army starts with partners and then you build below it, right? Interesting. जयराज, आपने बताया मतलब आप आई थिंक काफी रोल मॉडल्स की भी बात कर रहे हो, आप मार्क ज़करबर्ग वगैरह, राइट? आप इन सब की बात कर रहे हो। जब आप सोच रहे थे कि आपको खुद से कुछ करना है, राइट, तो वो कौन लोग थे आपके आसपास जो आपको इंस्पायर कर रहे थे? तो एक्चुअली मैं बहुत बड़ा क्रेडिट मेरा यंग इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम को देता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, क्योंकि उसके पहले मैं बस एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर था, बट मतलब एज कॉलेज में मैंने एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप किया नहीं था ना। At the end of the day, I didn't drop out and I didn't start the company. Entrepreneurship तब बन पाया जब मैंने बहुत सारे इंस्पायरिंग स्टोरीज सुने। जैसे मैं संजीव विकचंदानी का बात कर रहा था, he was really inspiring जब उन्होंने गेस्ट लेक्चर दिया हमको as a part of the program. फिर आशीष धवन, प्रमदराज सिन्हा,
इन सब का हर इवनिंग को we used to listen one success story. I remember Nandan had come, Nandan Nilekani had come and spoken to us. I remember Ashish Gupta, who is a current investor in my company. He spoke about entrepreneurship. So you listen to their stories. आप उनको देखते हो, आप उनके stories सुनते हो, and then you see and you also see that they are human beings. ऐसा तो नहीं है कुछ मतलब अलग है हमसे. So they have achieved, their stories sound real, so you feel that you can do it yourself. तुम भी कर सकते हो खुद से, मतलब it's possible. ऐसा नहीं है कुछ ऐसा नहीं है कि you're not capable of doing it. You can do it, and they make it very human when they tell their stories, right? They don't they bring it down, they humanize it. They also made mistakes. They also went through tough situations. It's not been an easy ride for everyone. So real stories actually inspire when you always talk about your failures and what you did wrong, not just about your successes. So I think the fellowship program was a big trigger for me कि I should take the step, because I stopped fearing failure. ठीक है यार, failure is not a failure until you accept it ना. It will be a mistake that you learn from. एक mistake होगा and you accept that mistake and you go on, and you have not accepted failure. So real life experiences kind of molded me to become a better entrepreneur and a leader. I went back to them. In fact, three of the founders of Ashoka University and Young India Fellowship are investors in my company. So they trusted me with their money, and then I hired people from the Young India Fellowship also. So it's a whole circle. The entrepreneur, the investor, and the employee are from that circle. So it kinds of the world gives back what you get. Yeah. No, I think आपने काफी एक interesting point भी touch किया है of social capital, right? Like आपका जो network है वो आपके काफी I think काम आता है, पर I think मतलब it's a supporting mechanism, right? हमारे जो ITI के दोस्त हैं उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे as far as social capital goes? मेरे को तो मैं वही 2-3 पॉइंट्स पे स्ट्रेस कर रहा हूँ बार बार. एक तो हाँ, ये सोशल कैपिटल इज अ पॉइंट नंबर 2 दैट आई वांट टू टॉक अबाउट. द फर्स्ट पॉइंट इज कि देखो, जो फर्स्ट जॉब होता है लोगों का, ITI हो या पॉलिटेक्निक हो या इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, जो फर्स्ट जॉब होता है तुम्हारे एकेडमिक्स के रिलेटेड होता है. तुम एकेडमिक्स में कितना अच्छा कर रहे हो और उसमें कितना अच्छा मार्क्स ला रहे हो, और उससे तुम्हारा फर्स्ट जॉब डिटरमाइन होता है कि कहाँ पे पहुंचोगे, फर्स्ट सैलरी और फर्स्ट जॉब. बट तुम अगर 5 साल आगे या 10 साल आगे जाओगे तो वो मैटर नहीं करता. इट डज नॉट मैटर हाउ वेल यू राइट एक्सेल, हाउ यू राइट कोड, वो सब मैटर नहीं करता. क्या मैटर करता है? हाउ वेल यू आर्टिकुलेट, हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, हाउ इज योर गुड लीडरशिप स्किल्स. जो सॉफ्ट स्किल्स है वो बहुत मैटर करता है. तो सॉफ्ट स्किल से कनेक्शन आता है सोशल कैपिटल का, कि अगर आप दूसरों को रेस्पेक्ट करोगे, आपके लाइफ में जो लोगों से मिलोगे, द पीपल यू मीट इन योर लाइफ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. यू शुड वैल्यू दीज रिलेशनशिप्स एंड यू शुड ऑल्सो नर्चर दीज रिलेशनशिप्स. दैट्स व्हेन यू बिल्ड सोशल कैपिटल, राइट? व्हेन you respect other people will respect you. So social capital comes from the point of soft skills. You need to nurture your soft skills, whether you are in ITI or you are in engineering or anywhere. That's the future. In 21st century, you will not be seen for your coding abilities. वो तो robot भी कर देगा. Robot will automate. Deep learning आ गया है, तो वो वाले jobs replace हो जाएंगे. But leadership will never be replaced. Entrepreneurship thinking will never be replaced. Creative thinking will never be replaced. So focus on your soft skills, focus on your articulation abilities, focus on narrating a good story. Very interesting. I think इन points के ऊपर हम shortlist करके भी, मतलब इन points को हम note down करके I think groups में भी भेजेंगे, because there are a lot of insights जो आप बोल रहे हो उसके ऊपर से. सुभाष का एक question है कि सर अगर फैमिली सपोर्ट ना करे या कहे कि अदर मतलब किसी और शहर में चले जाओ तो क्या करें, या जाने ना दे. इनफैक्ट आई थिंक दैट्स व्हाट इज क्वेश्चन, कि फैमिली या तो सपोर्ट ना करे अगर हमको घर से बाहर जाने ना दे तो क्या करना चाहिए. यार
ये फैमिली का सपोर्ट तो मुश्किल होता ही है स्टार्टिंग में हमेशा, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा. You need to believe in yourself and you need to take that hard call कि अगर करना है तो करना है types. तो मतलब फैमिली सपोर्ट बाद में आएगा. फैमिली will always forgive you when you're successful. You need to be internally, आपको अंदर से पता होना चाहिए कि मैं तो सक्सेसफुल होऊंगा. मतलब I will, एक one way or the other I will make it happen. अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो फैमिली का सपोर्ट हमेशा मिल जाता है. हर चीज में होता है ये, हर चीज में, not just about entrepreneurship, it's also about love life, right? फैमिली का इनिशियली सपोर्ट नहीं होता है बट बाद में मिल जाता है. जयराज, टॉक के बिगिनिंग में आपने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के बारे में बताया था. आप उसके बारे में हमारे लर्नर्स को क्यों नहीं और बताते हैं? आप क्या बोलना चाह रहे थे एंड हाउ हैज दैट प्लेड इनटू योर एंटायर बिजनेस आइडिया और आप जो आज कर रही हैं उसमें? तो दो तरीके के कंपनी बना सकते हो आप. मतलब दो तरीके के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं. एक सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप होती है जिसमें यू बिल्ड अ कंपनी एंड यू सेल इट एंड यू मूव ऑन एंड बिल्ड अनदर कंपनी. That's one approach of building companies. उसमें क्या है, you raise venture capital and you look to build value in the company. Valuation बढ़ाते हो आप अपने कंपनी का, फंडिंग उठा के वैल्यूएशन बढ़ाते हो और फिर कंसोलिडेट करते हो या उसको बहुत बड़ा बनाते हो, मतलब यूनिकॉर्न बनाते हो, है ना. वो एक तरीका होता है बना कंपनी खड़ा करने का. तो उसमें क्या है, जो अप्रोच है उसके लिए द काइंड ऑफ माइंडसेट जो जरूरत होता है वो कंपनी बनाने के लिए, उसमें माइंडसेट ये होता है कि मैं 6 महीने के अंदर कंपनी को यहाँ से यहाँ कर दूंगा. मतलब 1 करोड़ की कंपनी को 100 करोड़ तक ले जाऊंगा 6 महीने के अंदर. उसके लिए मैं 50 करोड़ रेज करूंगा और 50 करोड़ रेज करके 300 एम्प्लॉयज खड़ा करके मतलब ग्रो करूंगा. अगर 300 एम्प्लॉयज खड़ा करके 1 से 100 नहीं पहुंचती है और कंपनी का फंडिंग खत्म हो जाता है तो बंद करके आगे नेक्स्ट करूंगा. वो एक अप्रोच होता है कंपनी चलाने का. देन देयर इज अनदर अप्रोच वेयर आप स्लोली बनाते हो, आप एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करते हो. यू आर बिलीविंग इन द मिशन. आप मिशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हो रादर देन द वैल्यू, कितना वैल्यू आ रहा है. तो उसको इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग बोलते हैं. जैसे यूनिवर्सिटीज होती है, यूनिवर्सिटीज आर इंस्टीट्यूशंस. It's more about the university. It's not about how fast the university is generating profit. So if there is a mission related value creation that you are doing, वो social entrepreneurship में आता है. वो एक highly mission driven organization में आता है. तो वहाँ पे it is more about growing your mission and growing the credibility of the mission rather than generating profits and generating value. So most institution based entrepreneurs stick with one company and try to grow it over a period of time. And over a period of time, over multiple years, it becomes into a large brand, known for its credibility, right? So there you don't need a lot of venture capital money. You can build it self-sustainability through your profits, through your sustained revenues. तो दो तरीके से बनता है companies. Very interesting. हमारे एक्चुअली बहुत लोगों ने एक और क्वेश्चन पूछा है. दे वांट टू नो कि आपने जब कॉन्वर्जीनियस का आइडिया आपने कैसे इंसेप्ट किया कि आपको ये ऐप बनानी है, आपको एजुकेशन में काम करना है, गेमिफिकेशन का आइडिया आपको कैसे आया? प्लीज हमें बताइए. तो बहुत सिंपल था. हम जब 2014 में कॉन्वर्जीनियस सोच रहे थे शुरू करने का, तो उस टाइम पे हम बेसिकली ये देख रहे थे कि जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, उस बच्चे को हम उसके बच्चे का लाइफ और एजुकेशन हम कैसे इम्प्रूव करें. हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि स्कूल में जाके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर पाए, वो तो हम नहीं कर पाएंगे. ना हम टीचर्स भेज सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं. इतने सारे टीचर्स होते हैं अक्रॉस इंडिया. बट हमको ये जरूर पता था कि हर बच्चे के पेरेंट के पास एक घर में, एक फैमिली में एक स्मार्टफोन जरूर है. तो वो स्मार्टफोन के जरिए हम पहुंच सकते हैं बच्चे तक. और उस स्मार्टफोन में अगर हम एक एप्लीकेशन इतना अच्छा बना पाए जिससे हम बच्चे को पढ़ा पाए, सेल्फ लर्निंग करवा पाए, तो वी कैन एक्चुअली रीच द चाइल्ड विदाउट एक्चुअली चेंजिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम बट इंटीग्रेटिंग इट विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम. तो दैट वाज द रीजन व्हाई वी चोज एडटेक, कि we will be able to get quality content at the lowest possible price
and we would work on creating a presentation layer of how do we basically showcase the right content to the child at the right level. So it was always about the presentation. We saw a missing presentation layer and we wanted to create value there. We saw content also. Content था, मतलब digital content YouTube में search करोगे तो मिल जाता है. Content बहुत सारे लोग हैं बनाते हैं, but कौन सा content किसको किस तरीके से पढ़ना है वो missing था. तो बेसिकली नेटफ्लिक्स टाइप का चीज मिसिंग था उस टाइम पे. नेटफ्लिक्स फॉर लर्निंग, नेटफ्लिक्स अडैप्ट्स बेस्ड ऑन योर एंटरटेनमेंट स्टाइल, बट फॉर एजुकेशन इट इज मोर अबाउट engagement, it is about learning outcomes. So based on where you are in your learning graph, you should be able to see the right content, and every child learns differently. हर बच्चे का अलग learning style होता है और learning pace होता है, तो उस हिसाब से content उनको आना चाहिए. तो वहां पे मिसिंग था, तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो सकती है. तो हमने वहां पे सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू किया. नॉट फॉर प्रॉफिट से के साथ काम करना शुरू करके हम डेटा लेके हम लोग इम्प्रूव करते रहते थे प्रोडक्ट को बेस्ड ऑन हाउ बच्चे लोग पढ़ रहे थे, उसका डेटा आता था, एंड वी यूज्ड टू आइटरेट ऑन आवर प्रोडक्ट. वेरी इंटरेस्टिंग. एवरी एंटरप्रेन्योर, हर एंटरप्रेन्योर की कोई वीकनेस और स्ट्रेंथ भी होती है. जयराज, आप अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में भी हमें बताइए प्लीज. हाँ, तो बेसिकली आप टीम जब बनाओगे आप अपने वीकनेसेस पे बनाना टीम, क्योंकि द वीकनेसेस दैट यू हैव योर पार्टनर शुड बी एबल टू फुलफिल दोस. तो मेरा एक्चुअली सबसे बड़ा वीकनेस ये है कि I tend to listen less, and speak more in most surroundings. So I try to get one of my co-founders. He also listens to what the other person is also saying. So you complement each other. So that could be one example. Apart from that, there are others. Actually, if I am good at sales, someone should be good at tech. Someone who understands the bigger picture will not be able to look at it in detail. तो एक अगर bigger picture and the vision, someone who is able to see the vision, someone should be able to find critical faults with the vision that you are painting. तो दोनों होना चाहिए, मतलब नहीं तो in a vision and you can paint a really very rosy story, but those rosy stories should be actually achievable from an execution point of view. So there should be someone who should be able to set those blocks and say that yes, this is the execution path and this is achievable and this is not. So if you can paint high roads and bigger pictures, you need someone who is very grounded next to you and who should be able to say that listen, this is possible, this is not possible. So yeah, everyone has their own styles. Entrepreneurial styles are very different, but there needs to be one person in your company, in your founding circle, who can think something which is unachievable and unbelievable. That is very, very much required, because if you don't push your boundaries, right, you will never achieve new boundaries. Right? You should be able to push your boundaries and push your goals. Every time you achieve your goal, you push it ahead. So there has to be a person who is thinking crazy and eccentric. And there should also be people who are grounded, but their thinking also kind of gets pushed because of that. So you need both kinds of people. So your strengths should be their weaknesses, their strengths should be your weaknesses. That's why partnership is required. Very interesting, and thank you very much. अभी हमारा टाइम भी अंत होने वाला है. उससे पहले अगर और क्वेश्चंस आते हैं हम ले लेते हैं. सो बच्चे प्लीज स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस. और बट बिफोर दैट, अगर आप एक एडवाइस आप जब स्टार्ट आउट कर रहे थे, इफ यू कुड गो बैक एंड आप खुद को कुछ एक एडवाइस दे सकते थे उस उम्र में, आप क्या दीजिएगा? तो आई थिंक इससे हमारे लर्नर्स भी काफी समझेंगे, उन्हें इंसाइट भी मिलेगी और हमें भी पता चलेगा आपके बारे में. और एक एडवाइस, आप अपने दोस्तों को क्या बोलते हैं जिनको आप सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स बनना ही चाहिए? मैं तो यही बोलता हूँ कि यार 3 साल अगर यू कैन सर्वाइव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, तब बनो एंटरप्रेन्योर.
तो मेरे को एक्चुअली 3 से 4 साल लग गया था, मतलब विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि कुछ निकले। तो मैं तो यही बोलता हूँ दोस्तों को कि 3-4 साल का स्ट्रगल तो झेलना पड़ेगा, मतलब आउटर बाउंड्री। अब जल्दी भी हो सकता है, सक्सेस अचीव जल्दी भी हो सकता है, बट 3-4 साल तो लगता ही है जनरली। आदित्य, आपका क्या कहना है, क्योंकि आप भी एंटरप्रेन्योर हैं, 3-4 साल का ये जो गैप की बात कर रहे हैं जयराज, आपका भी एक्सपीरियंस सिमिलर है कि क्या है? हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट मैं बहुत सारी बातों से रिलेट कर पा रहा था। तो मैं भी इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में था, मेरे को भी इंडियन एंजल नेटवर्क से ऐसा ही एक सिमिलर ऑफर आया था। तो मैंने भी सेम डिसीजन लिया था, मैंने भी ड्रॉप आउट नहीं किया, नहीं तो मेरे माँ बाप मार डालते। मजाक करो। बट आई थिंक जयराज ने जो भी बातें सिखाई आज हमें, बहुत ही सही और इम्पोर्टेंट बातें हैं। अपने पैशन को फॉलो करना, वो शुरू में अपने आप को सैलरी ना देना ताकि आप अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए जितना हो सके अपनी तरफ से डाल सके, आपका एथिक्स सही होना कि आप अपने वैल्यू को, अपने सिद्धांतों को फॉलो करें। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और ये 3-4 साल वाली बात बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से भी, कि इसको आई थिंक एक टर्म भी है जयराज जी, अगर आप ने सुना होगा, 1000 डे टेस्ट बोलते हैं ना इसको। हाँ, तो अगर आप 1000 दिन टिक गए फील्ड में तो ज्यादा चांसेस है आपके सक्सेसफुल होने के। तो जो जयराज जी ने कहा, मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखता हूँ और मेरे को तो बिल्कुल सही लगता है। आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मेरा भी एक टेक अवे था वो ग्रिट का, राइट? जब हम उद्यम में एंटरप्रेन्योरशिप के माइंडसेट्स पढ़ाते हैं तो ग्रिट, सेल्फ अवेयरनेस एंड इंडिपेंडेंस आर लाइक द 3 थिंग्स दैट वी, जो जिसके ऊपर हम बहुत फोकस करते हैं, राइट? तो आई थिंक ग्रिट एक उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, जो लिस्ट आपने कंक्लूड करी, आदित्य एंड जयराज। थैंक यू सो मच जयराज आने के लिए एंड बात करने के लिए। बड़ी ऑनेस्टली आई थिंक हमारे दोस्तों को काफी फायदा हुआ इससे, राइट? जैसा आपने बीच में एक बार आप बता रहे थे, राइट, अपने जो आप आज बोल रहे थे कि स्टोरीज से आप इंस्पायर हुए, तो हमारा ये जो पूरा सेशन है ये भी हमारा अब मतलब 3 टाइम्स अ वीक या 2 टाइम्स अ वीक स्टोरीज का ही है, राइट? क्योंकि जितनी आप स्टोरीज सुनते हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योर्स बने हैं, आप उनसे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, रादर देन आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाए और बोला जाए कि आप राइट। तो स्टोरीज काफी पावरफुल है। और जितने भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं वो हमेशा ये बोल रहे हैं। मरियम जो इस कॉल पे है, उन्होंने भी इसके ऊपर काफी स्ट्रेस किया था, वो खुद एक एंटरप्रेन्योर है। थैंक यू सो मच जयराज, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा हम लोगों से बात करके। एंड आकांक्षा, ओवर टू यू। दोस्तों, मैं अभी सेशन एंड करने से पहले आपको बता देती हूँ कि हमने गूगल फॉर्म आप लोग को भेजा है जिससे अटेंडेंस लगेगी। तो 10 बजे से पहले आप प्लीज उसको मार्क कर दीजिएगा ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे। 10 बजे के बाद फॉर्म बंद हो जाएगा तो आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। तो प्लीज 10 बजे से पहले आप अटेंडेंस लगा दीजिएगा ताकि हमारे पास रहे। जयराज, थैंक यू अगेन। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू एंड टू नो अबाउट यू। ये काफी इंस्पायरिंग था मेरे लिए भी पर्सनली, एंड आई एम श्योर हम सबके लिए जो भी ये देख रहा है। सो आई होप टू सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट। ऑल्सो एवरीवन, हम कल वापस से मिलते हैं। अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। नाइट।